Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapaharataram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 46. Which has 23 verses. In this chapter, after the great battle between the Devas and the Daityas over the churning of ocean of milk, desolate over the death of her sons, Diti embarks on a course of austerities at Kusapalava with the permission of her husband Sage Kashyapa, with the object of securing a son capable of killing Indra. Indra, on coming to know of her intention, serves her during the period of her consecration, and taking advantage of her falling asleep on one occasion with her head in the wrong position, he thereby transgresses the rules of purity, enters her womb and craves the fetus. आज हम बालकांड के षट चत्वारिंशः सर्गः अर्थात 46वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें पुत्रवध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुशप्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालने का विवरण दिया गया है। इसमें 23 श्लोक हैं। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुखिताः मारीचम कश्यपम नाम भर्तार मिदम ब्रवीत। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, Sore afflicted on her aforesaid sons having been killed in the course of their conflicts with the sons of Aditi, Diti addressed her husband, named Kashyapa, who was the son of Marichi, as follows. हत पुत्रास्मि भगवंसतव पुत्रेर महाबलैः शक्रहंतारमिच्छामि पुत्रम दीर्घ तपोर्जितम। भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। I have been deprived of my sons, O venerable sage, by your very mighty sons, the gods. Now I long for a son secured of course through prolonged ascesis that may be able to kill Indra, the destroyer of my sons. साहं तपश्चरिष्यामि गर्भम में दातु मरहसि ईश्वरम शक्रहंतारम त्वमनुज्ञातु मरहसि। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। As such I shall practice austerities. Be pleased therefore to favor me with a powerful son capable of killing Indra. You ought to grant me leave. तस्यास्तद वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिम परम दुखिताम। उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचि नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। Hearing her aforesaid submission, the exceptionally glorious Kashyapa, son of Marichi, replied as follows to Diti, who was sore and afflicted as she was. एवं भवतु भद्रम
ते शुचिर्भव तपोधने जनिष्यसि पुत्रम त्वम शक्रहंतार माहवे। तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। Let it be so. May all be well with you. Observe purity till the birth of a son, O lady rich in ascesis. In the ripeness of time, you will give birth to a son who should be able to kill Indra in an encounter. पूर्णे वर्ष सहस्रे तु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्रम त्रैलोक्य हंतारम मतस्त्वम जनिष्यसि। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। At the end of full 1000 years, provided of course that you maintain your purity, you will bring forth through me a son capable of killing Indra, the ruler of the 3 worlds. एव मुक्त्वा महातेजाः पाणिना सममारजताम् तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। Saying so, the highly glorious sage stroked her with his hand and then touching her person and pronouncing his benediction on her, set out to resume his austerities. गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परम हर्षिता कुशप्लवम सामासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम। नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। Duly reaching Kusapalava, when Kashyapa had departed, O jewel among men, Diti, full of great joy, began to practice the most severe austerities. तपस्याम ही कुर्वत्याम परिचर्याम चकारह सहस्त्राक्षो नरश्रेष्ठ पर्यागुण संपदा। पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय सहस्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। While she practiced austerities, Indra, the 1,000-eyed gods, O jewel among men, rendered personal service to her through his exuberant wealth of virtues, so the tradition goes. अग्निम कुशान काष्ठमपः फलम मूलम तथैव च न्यवेद्यत सहस्त्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम। सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्यान्य अभिलाषित वस्तुओं को ला लाकर देते थे। Indra brought for her use fire, blades of kusha grass, firewood, water, fruits as well as roots, and whatever else was desired by her. गात्र संवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्ततः शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसा ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। Indra, it is said, served Diti at all times by massaging her weary limbs and thus relieving her fatigue. पूर्णे वर्ष सहस्रे स दशोने रघुनंदन दिति परम संहृष्टा सहस्त्राक्ष मथा ब्रवीत। रघुनंदन, जब सहस्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्र लोचन इंद्र से कहा, When 1 full 1,000 years but 10 having elapsed, O Rama, the celebrated Diti,
who felt immensely delighted, forthwith spoke to Indra as follows. तपश्चरन्तया वर्षाणि दश वीर्यवताम वर अविशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम द्रक्ष्यसे ततः। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। Only 10 years have yet to be spent by me in practicing austerities, O jewel among the powerful. May prosperity attend on you. You will, after that, behold a half-brother by your side. यमहं त्वत्कृते पुत्र तमाधास्य जयोत सुखम त्रैलोक्य विजयम पुत्र सह भोक्ष्यसि विज्वर। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। I shall place on friendly terms with you my future son, whom I had sought for your destruction's sake, my son, and who is consequently expected to be ever eager to conquer you, so that free from all anxiety, you will enjoy with him, my son, the conquest of all the 3 worlds that will be vanquished by him. याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तव महात्मना वरो वर्ष सहस्त्रांते मम दत्तः सुतम प्रति। सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। A boon to the effect that I should have a son at the end of 1000 years was granted in my favor, O jewel among gods, by your high-souled father, Sage Kashyapa, when implored by me. इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रयाप हृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गईं। उस समय सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। Saying so, as the sun had just reached the meridian, the glorious Diti was overtaken by sleep and forthwith lay down, placing her feet where her head ought to have lain. दृष्ट्वा तामु शुचिम चक्षक्रः पादयोः कृत मूर्धजाम शिरः स्थाने कृतौ पादो जहास च मुमोद च। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। Indra laughed and rejoiced to see her in an impure posture, having unconsciously allowed her hair to touch her feet, and to behold her feet placed where her head ought to have lain. तस्याः शरीर विवरम प्रविवेश पुरंदरः गर्भम च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान। श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। Indra entered the orifice of her genitals by dint of his yogic power, O Rama, and carved the fetus into 7, fully alert as he was. विद्यमान स्ततो गर्भो वज्रेण शत पर्वणा रुरोद सुस्वरम राम ततो दितिर बुध्यत। श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। The fetus thereupon cried in a shrill voice
while it was being cut by Indra's thunderbolt, a weapon which had 100 edges, O Rama, and Diti then woke up. मारुदो मारुद रुदश्चेति गर्भम शक्रो अभ्यभाषत बिभेद च महातेजा रुदंतमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो, परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। Indra went on saying to the fetus, pray, do not cry, do not cry. The exceptionally glorious Vasava, a name given to Indra, continued to carve the fetus again and again, till each part was further subdivided into 7, even though the fetus remained crying. न हन्तव्यमित्येव दितिर्ब्रवीत निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात। उस समय दिति ने कहा, इंद्र, बच्चे को ना मारो ना मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। Diti only said, the fetus should not be killed. It should not be killed. Out of deference to the remonstrance of his stepmother, Indra therefore emerged from her womb. प्रांजलिर वज्र सहितो दितिम शक्रो अभ्यभाषत अशुचिर देवी सुप्तासी पादयोः कृतमूर्धजा तदंतरमहं लब्धवा शक्रहंतार माहवे अभिन्दम सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं, इसलिए मां, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। Appearing with his thunderbolt, Indra spoke to Diti with folded hands as follows. You lay asleep, O venerable lady, in an impure posture with your hair touching your feet. Seizing that vulnerable point, I carved into 7 the fetus that was designed to kill Indra, myself, in an encounter. You ought to pardon this offense of mine, O worshipful lady. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 46 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। Dhanyavad.